हेलो फ्रेंड्स, आज वेब एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल के 4th वीक के अंदर हम ओप्स फाइल हैंडलिंग, माई रेगुलर एक्सप्रेशन एंड डेटा प्लॉटिंग करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल इन पाइथन, टू क्रिएट एंड यूज क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, implement inheritance, encapsulation and polymorphism, handle files, exceptions, connect Python with MySQL for database operations, regular expressions, and plot library for like matplotlib. Abstract data type and classes. Abstract data type is model for data structure with defined operations but hidden implementation. Class is the blueprint, contain variable and function. So this is the student class, this is the constructor, and initialization, the property, name of the variable, and this is the function. Encapsulation. Encapsulation is the bundling data and method. And information hiding, restricting access using private protected members. For example, this one is a account class constructor. This one is what is this is private member. Inheritance in Python. Inheritance allows a class to inherit attributes and methods from the other class. For example, animal class contain speak method. Dog is another class. Inherit dog class is animal class. Animal is parents class, dog is child class. There are different types of inheritance like single, multiple, multi-level, hierarchical, hybrid. File handling in Python. Basic operations like writing to a file, reading from a file. With using with means automatically closing. Open file as writing mode. Next, using write method, writing some string. Next, R4 reading mode, open file, and next using read method, reading content of the file. Other mode A, B plus. B for binding, A for append. Exception handling. Exception handling means to handle the runtime error. Use exception handling using try and except. If a number is divided by 0, that time cannot handle and it give runtime error. So using except, print, and finally print always execute. It means in finally block any statement that will always execute. MySQL database operations. We require to install pip install MySQL client, import. Next, for using connection, connect method, host, user, password, DB name. Next, using cursor method, connect. Then using object of the cursor, execute method, we can create table, insert value, then using commit we can save. Select, execute. Next, cursor dot fetch all, one by one, and delete with execute method. In this way we can different statement we use in Python. Regular expression in Python. We require first import RE, then pattern this one. This is the text and find all. Pattern this, text this.
so result will be this one. Other function also we can use with re object, like match, search and substitute. Data plotting using matplotlib. Who those know about the machine learning, I think they know better very well how can we visualize the data. So using matplotlib library, we can make the plot, line plot, bar plot, histo, sector, pie. There are different plots we can, like using plot method. Title this one, X label, Y label, and using show method we can show. Next, we can study in details. Do you know this one is the constructor method. It gets called automatically when you create a new student object. Self means refer to the current object being created. Name and roll number are parameter passed when creating the object. Inside the constructor, self.name equal name, assign the given name to the object name property. Next, assign to the given roll number to the object roll property. This is the display method. And fstring means it print the student name, roll number using fstring for formatting. In other words, easy way में we can understand कैसे, like what is an abstract data type. देखो abstract data type होता क्या, आपने बहुत बुक्स के अंदर पढ़ा होगा. क्या है ये? एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर है. ध्यान रखना. क्या डिस्क्राइब करता है ये? व्हाट ए डेटा टाइप डज, नॉट हाउ इट डज. मतलब कैसे डज करता है, कैसे करता है ये नहीं, बट करता क्या है ये डिस्क्राइब करता है. लाइक लिस्ट, स्टैक, क्यू, डिक्शनरी. स्टैक, पुश और पॉप का यूज करके जो हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं. क्लासेस ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, कस्टम डेटा टाइप, एट्रीब्यूट और मेथड्स जो है कंटेन करता है. और एग्जांपल हमने देखा था. ठीक है, बाकी आप इसको स्टॉप करके और डिटेल में पढ़ सकते हैं. अब बात करते हैं एनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइड. जिस टाइप से एनकैप्सुलेशन होता है कि बंडलिंग करता है डेटा और मेथड, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या करता है कि आउटसाइड से जो है प्रोटेक्ट करता है. ये क्लास है अकाउंट नाम की और इस टाइप के कंस्ट्रक्टर है. नेक्स्ट ये एक प्राइवेट है, इसमें डबल अंडरस्कोर है बैलेंस के साथ में. अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ तो आपको ये नजर आएगा. देखो डबल अंडरस्कोर. ठीक है, तो और थोड़ा सा बेटर तरीके से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. एनकैप्सुलेशन एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग इन पाइथन. देखो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि वो एरिया, वो जगह, वो सिंगल यूनिट जिसके अंदर कि डेटा वेरिएबल, मेथड रैपिंग करते हैं, वो क्या कहलाता है? एनकैप्सुलेशन का. ठीक है. हाइडिंग क्या होता है? इंटरनल डिटेल्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ड से हाइड होती है, प्रोटेक्ट होती है. ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन से सिर्फ एक्सपोज होती है, बाकी डायरेक्ट जो है नहीं कर पाते हैं. लाइक ये वेरिएबल है प्राइवेट, इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते. तो एक्सेस लेवल क्या होते हैं पाइथन के अंदर? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट. अब देखो एक क्लास है,
यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे बैलेंस के साथ में दो अंडरस्कोर है। ठीक है, ये अकाउंट के साथ में एक अंडरस्कोर है, ओनर के साथ में कोई नहीं। तो इन्हीं सिंबल से वी कैन अंडरस्टैंड कि ये प्राइवेट वेरिएबल है, ये प्रोटेक्टेड है, और ये क्या है, फ्रीली एक्सेसिबल है, पब्लिक है। पहली तो बात ये है। अब इनको मेथड के थ्रू जो है हम एक्सेस कर पाते हैं, प्राइवेट मेंबर को रीड कर पाते हैं पब्लिक मेथड के थ्रू, जैसे इसने किया। ठीक है, इस टाइप से हम कर पाते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी है कि एक्सेसिबल है पब्लिक एनीवेयर, प्रोटेक्टेड है कि फॉर इंटरनल यूज नॉट एनफोर्स, और प्राइवेट नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। इस टाइप से हम जो है यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, अगर कोई वेरिएबल पब्लिक है तो डायरेक्टली जो है हम कर पाते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड है तो हम सिर्फ जो उसे एक्सेस कर पाते हैं, उसे मॉडिफाई नहीं कर पाते। और प्राइवेट है तो उसको डायरेक्टली हम एक्सेस भी नहीं कर पाते हैं, लाइक ये। ठीक है, प्रॉपर क्या वे होता है, मेथड के थ्रू जो है उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको समझाया हुआ इजी तरीके से कि पब्लिक में कोई अंडरस्कोर नहीं होता है, जैसे ओनर के साथ में कोई नहीं है। प्रोटेक्टेड में एक अंडरस्कोर होता है, और प्राइवेट में बैलेंस के साथ में दो अंडरस्कोर। कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, यस पब्लिक, ये रिकमेंड कर सकते हो आप, बट रिकमेंड नहीं किया गया है, और ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से और बेटर तरीके से आपको बताया हुआ है, आप यूज करके और इसको पढ़ के और समझ सकते हो। ठीक है, ये थी एक्सेसिबिलिटी। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस। अलाउ ए क्लास टू इनहेरिट एट्रीब्यूट्स मेथड्स फ्रॉम अदर क्लास। लाइक एनिमल क्लास है, स्पीक मेथड है, डॉग क्लास है, एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही है, और इस टाइप से। अब डिफरेंट टाइप के जैसे हमने किए सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, ये होते हैं। तो इनहेरिट क्या करता है, एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं डेटा मेथड्स को दूसरी क्लास उसको यूज करती है। दूसरी क्लास के, समझ लो कि एक क्लास दूसरी क्लास के डेटा मेथड को यूज करने का जो वे है, तरीका है, मेथड्स है, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। जिस क्लास के यूज करते हैं वो पेरेंट क्लास, और जो यूज करने वाली होती है दैट इज चाइल्ड क्लास। अब इनको वन बाय वन जो है समझाया हुआ है कि ये सिंगल इनहेरिटेंस है। डिफरेंट टाइप के जो है इनहेरिटेंस लिए हुए हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मोर देन वन पेरेंट क्लास, एक फादर, एक मदर, एक चाइल्ड। तो क्या हो रहा है, अब चाइल्ड क्लास जो है दोनों को से इनहेरिट कर रही है, तो इस टाइप का क्या कहलाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड। तो ग्रैंड पेरेंट को कौन इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट, और चाइल्ड को कौन कर रहा है, इस टाइप से जो है क्या होगा, आप एक्सेस कर सकते हो उसका ऑब्जेक्ट बना के, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से जो है एक्सेस कर। नेक्स्ट, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम द सेम पेरेंट क्लास। लाइक एनिमल, डॉग को एनिमल कर रहा है, रेट रेट कैट को एनिमल कर रहा है। तो इस टाइप से जो है ये इस लेवल पे भी कर सकते हो। हाइब्रिड, ए मिक्स ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टीपल और मल्टी लेवल। ये किस टाइप से करें, तो ये ए बी क्लास ए क्लास को कर रही है, सी, अब सी क्लास किसी को नहीं कर रही है इनहेरिट, डी डी कर रही है बी और सी को। तो इस टाइप से डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, डी से उसको ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है, इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर लेते हैं। ये टेबल फॉर्म में समझाया हुआ है कि सिंगल क्लास क्या करती है, मल्टीपल क्या करती है, पेरेंट क्या, मल्टी लेवल क्या करती है, हायरार्किकल और हाइब्रिड का क्या होता है।
अब बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है कि जब रन टाइम एरर होती है उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। कुछ एरर आती हैं जिनको जो है हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसको हैंडल करने के लिए ग्रेसफुली एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है। जिससे कि प्रोग्राम हमारा क्यों यूज करते हैं, प्रिवेंट प्रोग्राम क्रैशेस, हेल्प शो यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज, अलाउ प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग इवन व्हेन एन एरर। तो ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं। ट्राई के अंदर अपना कोड जहाँ पे कि एरर जनरेट करवाएंगे, और एक्सेप्ट के अंदर जो है वो क्या एरर है उसका मैसेज देंगे, और फाइनली ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक ऑलवेज जो है एग्जीक्यूट होता है। अब वन बाई वन जो हम समझ सकते हैं कि डिवीजन बाय जीरो का कैसे देंगे। तो ये डिवीजन बाय जीरो का एग्जांपल है। हैंडलिंग मल्टीपल एरर्स, लाइक इनपुट दिया नंबर, वैल्यू एरर की बात करते हैं, ये वैल्यू एरर एक्सेप्ट के अंदर डाला। दूसरा एक्सेप्ट के अंदर क्या डाला, जीरो डिवीजन। तो मल्टीपल भी जो है हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। तो वैल्यू एरर और इनपुट इज नॉट ए नंबर, और डिवीजन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, तो उस टाइम में ये डिवीजन जीरो डिवीजन एरर हैंडल करेगा। कैचिंग ऑल एक्सेप्शंस, तो ऑल एक्सेप्शंस में क्या करेंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, और वहां पे जो है हम क्या करेंगे, करवा देंगे। ये फाइनली इस टाइप से ऐड कर, तो इस टाइप से वन बाय वन करके हम समझ सकते हैं कि किस टाइप से जो है हम यूज करते हैं। कस्टम हैंडलिंग भी कर सकते हैं। क्लास है, एक्सेप्शन क्लास पास करें, वहां पे ट्राई करें, एक्सेप्ट करवाते हैं। डेटाबेस ऑपरेशन, जैसा कि हमने समझा कि डेटाबेस के लिए हमें एक पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट मेथड का यूज करके, और वहां पे होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस। नेक्स्ट एग्जीक्यूट मेथड कर्सर से जो है उसे कनेक्ट करेंगे, और देन एग्जीक्यूट मेथड से हम क्यूरी राइट करेंगे। और सेलेक्ट के अंदर हम फैच ऑल कर सकते हैं, वन बाय वन जो है प्रिंट करवा सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई स्पेसिफिक पैटर्न है उसको फाइंड आउट करना है, तो वहां पे जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन के अंदर यूज करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट मेथड होते हैं, लाइक मैच है, सर्च है, फाइंड ऑल है, और सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट डेटा प्लॉटिंग के अंदर पाइथन के अंदर मैटप्लॉटलिब है, हम विजुलाइज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी जो है आप ये समझ लो कि इसी से जो है प्लॉट किए जा सकते हैं। ये डिफरेंट प्लॉटिंग के वे हैं, जिसमें कि आप बार चार्ट कर सकते हो, बार का यूज करके हिस्टोग्राम बना सकते हो, स्कैटर प्लॉट कर सकते हो, और पाई चार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चंस के। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये है, क्या कि व्हाट इज एनकैप्सुलेशन इन पाइथन, राइट ए क्लास विद ए कंस्ट्रक्टर एंड ए मेथड, हाउ डू यू हैंडल एक्सेप्शंस यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट, write a program to write and read a file, what is inheritance, give an example, how to connect python with mysql, give an example of regular expression using python, what is the purpose of finally block, plot a bar chart using matplotlib, how to create a table and insert value in mysql db। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, बट कैसे एग्जाम में राइट करोगे वो राइट करने के तरीके भी आगे बताए हुए हैं। नेक्स्ट MCQ, विच मेथड इज यूज टू रीड ए फाइल, तो कौन सा, रीड मेथड। व्हाट डज OOP स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच मॉड्यूल इज यूज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन इन पाइथन, RE। व्हाट विल RE फाइंड ऑल, क्या करेगा, भी देगा, फाइंड ऑल करवा रहा है, डिजिट फाइंड आउट करवा रहा है, 1 2 3 4 5 6। इन एक्सेप्शन हैंडलिंग विच ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूट फाइनली। तो इस टाइप से ये 5 क्वेश्चन किए हैं, और भी आगे हैं, ये इनके सॉल्यूशन राइट किए हुए हैं, किस तरह से आप बेटर राइट कर पाते हो। तो ये जो है स्टॉप करके वन बाय वन सारे क्वेश्चंस आप जो है पढ़ सकते हो, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर गेन कर सको। इस वीडियो को देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन पढ़ के और राइट करने की कोशिश करो, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम पेपर है। और बेटर तरीके से अगर आपके पास में टर्म है तो आप लिख पाओगे, और टर्म्स ही नहीं है तो फिर इम्पॉसिबल होगा आपके लिए लिखना। फिर इंग्लिश के वर्ड राइट करोगे, उससे अच्छे नंबर जो है स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ये 25 जो है MCQ हैं,
इनको जो है आप पढ़ सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ बच गया उसको एक्सप्लोर कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बनाने के लिए तो बेटर है, बट जो अगर और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।